Bite Size Banter presented by Cereal, a podcast where we talk about anything and everything under the sun while indulging in some of our favorite and some not so favorite snacks. Today I have with me Shrishti, who also happens to be the co-host of the show. Hello, Yasna. Hi. And for those who have been following Cereal's Instagram or any other social platform, might already know who Shrishti is. But for those who are new here, Shrishti, would you be kind enough to introduce yourself? Sure. Hello everyone, I'm Shrishti and I am the mastermind behind everything that you see on Cereal Social. And we'll talk about podcasts. My manager is constantly pestering me to do it. I feel. Okay, thanks for this. Okay, now jokes aside. एक्चुअली हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम 1 मिनट से ज़्यादा का अनफिल्टर्ड फ्रीली टॉक और लेंदी सा कंटेंट डाल सके, जहाँ पे हम कुछ माइंडलेस और माइंडफुल बातें भी कर सकते हैं. Basically like a radio show, because I hate using the word podcast. Basically like a radio show which gives you perspective, with a hint of buffoonery, filled with bite-sized snacks and a buffet of banter. Just like this. Exactly. Okay, so Yasna, can you please tell us about yourself to our listeners? Well, when I'm put in the spot, it becomes very difficult for me to introduce myself to people. I guess through the series of these podcasts, our listeners will know more about me, who I am, what I like, what are my dislikes, especially when it comes to snacks, as and when they tune into the podcast. So let's keep it for that. Let's save the space for that. Okay, all right, Yasna. So, like, आज किस टॉपिक पर बातें होंगी? तो आज की स्नैक्स जो बाय द वे स्पॉन्सर्ड नहीं है, वेरी सैड. बेसिकली तो आज की स्नैक्स और आज की थीम दोनों नॉस्टैल्जिया है, एंड बस हम वही करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू गो स्नैकिंग डाउन द मेमोरी लेन एंड रीविजिटिंग फेवरेट मेमोरीज फ्रॉम द चाइल्डहुड. एंड कौन सी मेमोरी हम कब रीविजिट करेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे, वो सब इस छोटे से बोल में है जो हमारे स्टाफ ने प्रिपेयर किया है. ओके. एंड इसमें मुझे कई सारी चॉकलेट्स एंड दूसरी ट्रीट्स भी दिख रही हैं, एंड सम नॉट सो पैलेटेबल थिंग्स लाइक हाजमोला, बट एनीवे. So let's begin. Shrishti, would you like to start off with the topic? Sure, but मैं इससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी. देखो, लाइक ये जो पॉडकास्ट है, इससे मुझे एक और चीज़ रिलेटेबल लगती है. हम जो पुरानी अपनी मेमोरीज हैं और जो चाइल्डहुड है उनको वापस तो ला नहीं सकते हैं, तो इट विल बी बेटर कि एक फ्रेंड के साथ बैठा जाए और उस बातों को दोबारा से रिलेट. I wish teleportation were a thing. If that was a thing, then it would be possible to go back in time. Honestly, if someone asks me, so I would love to go back to the 90s era. Because किसको नहीं पसंद होता चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करना. Exactly, and वो ज़माना ही अलग था. You know, so simplicity उस टाइम की, and just the whole aura of the era was great. Like you are talking about nostalgic topic today. Correct. तो फिर आज जो हम shows वगैरह देखते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं, whatever we are watching, तो उसमें जो सीन्स होते हैं हमारे, कुछ चीजें पुरानी चीजों से रिलेट कर जाती थी और लगता है कि वो दिन दोबारा से आ जाए. करेक्ट. कई बारी स्पेशली जो पीरियड ड्रामास होते हैं या फिर जो एक सर्टेन एरा में बेस्ड हैं ड्रामास, उनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू द ड्रामास और शोज और मूवीज व्हिच आर बेस्ड इन टुडेज टाइम. तो उनके ज़रिए हम भी रिलिव कर लेते हैं. तो आज का छोटा अटेम्प्ट यही है कि हम वी गो बैक डाउन द मेमोरी लेन, हम अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करें. एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट बाय टॉकिंग टू समवन एंड स्नैकिंग. आई मीन खाना एंड टॉकिंग इज goes hand in hand. Because मुझे तो बात करना और खाना खाना दोनों साथ में मिल जाए फिर तो किसे नहीं पसंद. Exactly. तो I don't know about boys, but मुझे तो बहुत पसंद है. I think खाना तो सबको पसंद है. And अगर एक common topic मिल जाए बात करने के लिए, तो everyone's open to talking. Exactly. कोई interest की topic मिले तो I think anyone likes to talk. चलो, तो इसमें से एक ऐसा टॉपिक निकाल दो जो हमसे भी रिलेट कर सकता है. करते हैं. So why don't you pick one? ओके, तो मैं एक टॉपिक पिक करो और मैं एक ट्रीट पिक करती हूँ. ओके, सो लाइक Yasna is more desperate about snacks. I love food. More than this.
कोई फ्यूल जाएगा अंदर तो बातें हो पाएंगी। एग्जैक्टली। ओके, कॉफी बाइट। so the first topic is cartoon. कार्टून किसने नहीं देखे यार? तुमने कौन कौन से कार्टून देखे? मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। बट तुम्हें कौन सा एक कार्टून है सबसे ज्यादा पसंद है? As we all know, Shinchan. इनफैक्ट मैंने अपने बैग में उसका कीचेन भी लगा रखा है। वो मैंने देखा है। वो जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो मुझे दिखता है छनकता हुआ, शाइन करता हुआ। इनफैक्ट मेरे काफी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो शिनचैन को शायद पसंद भी नहीं करते, बट फिर भी उन्होंने वो कीचेन लगा रखा है। आई डोंट नो व्हाई। एक कार्टून देखा होगा which is called Totally Spies। मुझे वो बहुत इंट्रीग करता था। बेसिकली वुमेन सेंट्रिक कार्टून बहुत इंस्पायर करते थे मुझे उस टाइम पे। यूजली स्पाइस एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे हमने देखा है कि सिर्फ लड़के जा रहे हैं, आदमी जा रहे हैं, बट दिस इज वन प्लेस वेयर आई सॉ दैट देयर आर 3 गर्ल्स एंड दे आर स्पाइस। एंड वो अपने उनके पास एक कॉम्पैक्ट हुआ करता था। उनके मेकअप के जो किट्स होते थे, अलग अलग मेकअप का एक क्या मैंने शायद नहीं देखा, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो जैसे कि कॉम्पैक्ट हो गया या लिपस्टिक हो गई, जो भी मेकअप का प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, वो बेसिकली एक टूल होता था या कोई ना कोई एक वेपन होता था। ओके, तो कॉम्पैक्ट से वो कम्युनिकेट करते थे विद देयर बॉस। ओके, मे बी मैंने इसका कोई क्लिप देखा है। शायद मुझे शायद नेम से नहीं याद, बट टोटली स्पाइस करके था वो। ओके, वो था। एंड उनका लिपस्टिक वाज अ टेजर, समथिंग लाइक दैट। एंड ऐसे कई सारे उनके मेकअप प्रोडक्ट्स और जो गर्ली प्रोडक्ट्स हम क्लासिफाई करते हैं, वो बेसिकली वेपन्स थे या इंस्ट्रूमेंट्स थे, लाइक फॉर कॉलिंग और स्पाइज या एजेंट्स जो टूल्स यूज करते हैं, वो था। और सब लोग अपने अपने कार्टून्स और जो भी हम जिस भी टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सब कुछ कमेंट में डाल देना। एग्जैक्टली। अपने अपने फेवरेट कार्टून्स के बारे में बताएं। जो मुझे पता है कार्टून की एक ज्यादा अच्छी चीज लगती थी, मतलब कार्टून की स्टोरी को छोड़ के मुझे उनके जो गाने होते थे वो गाना बहुत पसंद था। मैं उनके साथ वाइब मिलाती थी कि लाइक वो गा रहे हैं मैं भी गा रही हूँ। लाइक आई एम आल्सो एक्टिंग लाइक दैट कि ये मिक्की माउस क्लब हाउस, मैं उसके साथ बोल रही हूँ। डोरा द एक्सप्लोरर तुमने देखा? डोरा द एक्सप्लोरर मैंने नहीं देखा। अगर वो कुछ करती है तो लाइक मैं उसके साथ मैच करने की कोशिश करती हूँ कि लाइक शी इज फाइंडिंग समथिंग टूल और ऑन द स्क्रीन, तो आई एम आल्सो कोलैबोरेट विद हर। मुझे हमेशा से लगता था कि जब एडवर्टाइजमेंट्स आती थी तो हम बार बार वही एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एग्जैक्टली। और जैसे कि एक मूवी देखे तो मुझे लगता था वो बार बार रीशूट होती है। और लोग, मुझे लगता था एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू बिलीव कि लोग टीवी के अंदर जाके एक्ट करते हैं। there's like a realm in the TV, कि बॉक्स टाइप टीवी हुआ करते थे। तो मुझे लगता था कि लोग अंदर जाके एक सेट क्रिएट करते हैं या एक वर्ल्ड अपने अंदर एक बना हुआ है, एंड दे गो इनसाइड एंड दे एक्ट। आई डोंट नो which part of my brain was very creative enough to create a dimension। मैं तो टोटली खुद को इलिटरेट कहूंगी उसके लिए, जो कि मुझे लगता था पानी के अंदर शूटिंग चल रही है और स्पॉन्जबॉब जाके वहाँ पे शूट भी कर रहा है। तो क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं, वो तो बनाया गया था यार। मतलब बट वो मुझे अभी पता चला जब मैंने ऑफिस में काम करना शुरू करा, तब तो मुझे पता चला। तुम क्या करूँ सब कैमरे के पीछे हंस रहे हैं। बट जितना थोड़ा बहुत मैंने आजकल के कार्टून देखे, जैसे मोटू पतलू एंड ऑल, वो कुछ मोटू पतलू, और मुझे मोटू पतलू से 2-3 ऐसे कार्टून याद आया। मोटू पतलू की एक चीज ऐसी याद आई है जो लिटरली समोसे खाने से किसको ताकत आती है, उसका समोसे खाए बिना दिमाग नहीं चलता। पतलू मुझे समोसे दिलाओ वरना मेरा दिमाग नहीं चलेगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ वो बोलता है ना। मुझे बाय द वे मैं ये कार्टून खुद से नहीं देखती हूँ, मेरा एक नेबर था मतलब बैक होम। तो अच्छा सॉरी आशा, मैं तुम्हें काट रही हूँ तुम्हारी बात बीच में, पर लाइक तुमने ऐसा कहा था कि लाइक वी आर ऑर्गेनाइज अ बाइट साइज वेंडर विद काइंड ऑफ बुक्स एंड तो वेयर आर द स्नैक्स दीजिए। आई थिंक हमें टीम को बोलना चाहिए स्नैक्स प्रोवाइड करने के लिए। मतलब बातों में इतनी खो जाती हैं दो लड़कियां कि खाना भी भूल गई। ओके, फेंके जा रहे स्नैक्स, नट कट लाइक वी आर। नहीं, मैंने शक्ल उस पे नहीं बनाई, मैंने शक्ल उस पे बनाई कि खुल नहीं रहा था। ओके, यू कैन।
Okay, so now next topic will be from yours. फैशन ट्रेंड. ओके, मतलब यहाँ पे मैं शायद खुद को रोक नहीं पाऊंगी बोलने से, क्योंकि आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दैम. अच्छा सॉरी, मेरे पास यहाँ पे अपना किट नहीं है, वरना मैं दिखा देती. फैशन ट्रेंड मतलब तब तो देखो, सच बताऊं, मम्मी फैशन नहीं करने देती थी. नहीं करने देती थी. मुझे तो लगता था, मुझे तो हाँ, बस लगता चुराकर नेल पेंट और लिपस्टिक जरूर लगाया है, और अपने साथ साथ अपनी भाभी को भी. बाबी, हाँ बाबी बहुत देखा है. ऑन दैट नोट, हाँ, बाबी की मूवीज इतनी आती थी पोगो पे. आई रिमेम्बर पॉन्ड लेक एंड नट क्रैकर, वो बहुत देखी हैं. एंड आई समहाउ यूज्ड टू बिलीव कि मैं भी एक टाइम पे बैलरीना बन सकती हूँ, बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैंने बैले ट्राई किया था एज अ चाइल्ड एंड देन डिडंट हैपन. मुझे नहीं पता बारबी से, मतलब वैसे काफी सारे लोगों ने किया होगा. तुम बारबी से खेलती तो होगी at least, बहुत सारे. है ना? मेरे पास मिक्स टॉयज हुआ करते थे. सो आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे पास टॉयज, बुक्स एंड माई ओन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन आई वॉज लेफ्ट विथ टू just be by myself and create something from nothing. Okay. And something from something, and then play with it and just entertain myself. मैं बारबी से रिलेटेड अपनी एक सच्ची घटना पर आधारित एक बात बताना चाहूंगी सबको. बारबी मुझे मिलती थी पूरे फॉरेनर लुक में, मैं उसको पूरा बना देती थी इंडियन लुक में, लाइक अ दुल्हन. कैसे? अच्छा. मैं अपनी दादी के साथ मिलकर उसके कपड़े सिलवाती थी, पिंक, रेड, ब्लू काइंड ऑफ लहंगे, फ्रॉक, स्कर्ट्स का मेकअप. इनफैक्ट मैंने उसके बाल वॉश करके उसका हेयर स्टाइल भी किया. मैंने भी बहुत किया. मैंने उसको हेड वॉश, उसका एक टाइम पे मैंने इतना, आई थिंक जिस तरह लड़के लेगोज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने बाबीज के डॉल हाउसेस में लड़कियां काफी इन्वेस्ट करती हैं. तो मेरे पास उसका डॉल हाउस था. उसका, हम बिल्कुल ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट आई थिंक इट्स स्टिल रेलेवेंट बिकॉज़ बैक इन टाइम, बिकॉज़ वो चाइल्डहुड मेमोरी है, तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगी. एग्जैक्टली. विल कम बैक टू फैशन ट्रेंड्स, बट फॉर नाउ इट्स ऑन द बैक बर्नर. ओके. तो तुम ऐसा कोई ब्रांड बताओ जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें यूज करती हो. बचपन से लेके आज तक ऐसा तो कोई ब्रांड नहीं है जो मैं, बट फैशन ब्रांड्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगी. फैशन ट्रेंड के बारे में ज़रूर बात करूँगी. मुझे एक ट्रेंड जो मुझे लगता है जो एवरग्रीन है एंड जो मैं कभी छोड़ नहीं सकती एंड जो मुझे हमेशा एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया देता है, डेनिम. ओके. तो आई थिंक एक ऐसा एवरग्रीन ट्रेंड है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जा सकता. एंड एज वी आर गर्ल्स, हमारी मॉम को हमें डेकअप करना, सजाना भी बहुत अच्छा लगता था, like every mom does. So मैंने एक और फैशन ट्रेंड which I personally love is high waisted jeans. Okay. And crop top. I think they are also very in. कभी भी out of fashion नहीं जा सकते. Boots and also dungarees. तुम्हारे लिए कौन सी चीजें हैं जो तुम 90s या अर्ली 2000s का फैशन ट्रेंड, लाइक 90s तुमने बोला, यू हैव मेंशन्ड 90s, अर्ली 2000s भी. मैं मतलब बेबी इट विल आल्सो इंक्लूड इन फैशन. काजल के बारे में बात करूंगी मैं. तो पुरानी हीरोइंस थी, वो जिस तरह से काजल लगाती थी, वो मुझे बहुत पसंद था, स्पेशली फ्रॉम हेमा मालिनी. तुम जब अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देखती हो और जब तुम तब के पहने हुए कपड़े देखती हो, हाउ डू यू लाइक योरसेल्फ? वुड यू वांट टू चेंज योर फैशन सेंस बैक देन, और वुड यू लेट इट बी द सेम, और वुड यू वांट कि मैं बेबी सृष्टि को वैसे स्टाइल करूं जैसे मैं आज स्टाइल होती हूँ? डू यू थिंक यू आर मोर स्टाइलिश नाउ और मोर स्टाइलिश बिफोर? मतलब मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को अपनी मम्मी से ये लगता है कि मम्मी पता नहीं कैसा सा तैयार करके रखती थी उस टाइम पे. ऐसा होता है. एक तो लड़कों का वो फेमस हेयर स्टाइल, तेल लगाकर साइड वाला पार्टिंग निकाल के वो चुपका देती है बिल्कुल बालों को, वो वाला स्टाइल होता है लड़कों का. बट मैं अपने एंड से बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी फैशन ट्रेंड्स में और स्टाइल में बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, तो मुझे उस बात का कोई गम नहीं है. क्योंकि मेरी मम्मी इतने प्यारे प्यारे कलर्स, इतने प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशन और इतने अच्छे ड्रेसेस और हेयर स्टाइल वगैरह बना के रखती थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उस टाइम पे बुरी दिखती थी. मैं फोटोग्राफ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हाँ. एंड आई थिंक हमें दूसरे स्नैक्स भी प्रोवाइड कीजिए.
गेम्स तो बहुत सारी खेल। ओके, तो सब चटपटा ही मिलता जाएगा। कुछ मीठा भी दे दीजिए। You have coffee bite and coffee go and one more happy day. यार ये तो आज मुझसे खुलने से रहा। हमने मीठा मांगा, मीठा आ गया, वो भी खुला हुआ। हाँ, थोड़े से दिल हाथ। ओके, पेपी, तुमने पेपी पहले खाया है? हाँ, बहुत बार। आई हेट कि जब का पैकेट इस तरह खुलता है, I usually like to open it ऐसे ताकि neatly खुले, and I hate it जब people उल्टा करके यहाँ से खोलते हैं। It just piques the inner OCD in me. So okay, thank you. हाँ, तो next topic is games. We are talking about games. Games तो बहुत सारी खेली। अब games तो हमने, उसका टेस्ट अच्छा है। हाँ, because ये tangy है। If you like tangy stuff, then it's nice. You're not. I do. Okay. Games में मैं अपनी चीज शेयर करना चाहूंगी। मैंने वो वाले वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन मैंने ये कूदा फांदी तोड़ा ताड़ी वाले गेम बहुत खेले। मैंने दोनों बहुत। मैं पूरा दिन स्कूल के बाद जब भी टाइम मिला तो मेरा पूरा दिन रोड पे ही जाता था। हम सारे सोसाइटी के बच्चे इकट्ठे होते थे और खेल रहे थे, लंगड़ी खेलते थे। तुमने सतोलिया सुना होगा? लंगड़ी तो तुमको पता होगा, 1 2 3 4 ऐसा करके बॉक्सेस क्रिएट करके रोड पर चौक। हॉपस्कॉच। हाँ, उसको हॉपस्कॉच बोलते होंगे, बट हमारे ग्रुप में उसको लंगड़ी बोला जाता था। मार्बल्स हुआ, जिसको कंचे भी कहते हैं, और सतोलिया खेला है, जो पत्थरों का वो कुछ बिल्डिंग बना। हाँ, 7 टाइल से। हाँ, तो जो भी है, याचना बिल्कुल अपने वाली लैंग्वेज में बता रही है, अपने गेम में अपने वाले लैंग्वेज में बता रही हूँ, बट लाइक इट वाज रियली फन। वो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी करके उन गेम्स को खेलना। याचना शायद नेक्स्ट में भी है। नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी कि सच में कौन सा फ्लेवर है, just observing the pack. तो याचना के जो गेम्स की लैंग्वेजेस हैं वो और मेरी, आप दोनों कमेंट में बता देना आप किसको कौन सा लाइक, आप क्या कहते हो उसको एग्जैक्टली। आपने जो खेला हो तो आप एक हॉपस्कॉच बोलते हो, लंगड़ी बोलते हो, काइंड ऑफ। ठीक है। एक मेरा प्ले रूम हुआ करता था। तो भाई बहन जब नहीं होते तो एज अ सिंगल चाइल्ड यू गिवन द लग्जरी टू हैव योर ओन प्ले रूम। तो उसे मैं अपना प्लेन टीवी रूम बोला करती थी। तो एक इस जगह टीवी हुआ करता था, इस जगह एक कंप्यूटर, एंड बीच का एरिया पूरा प्ले एरिया हुआ करता था, जिसमें 2 बीन बैग रखे हुए थे, एंड एक सेक्शन था जिसमें एक स्लाइड बनी हुई थी। I had a good childhood, like I used to enjoy by myself a lot. मेरे पास toys थे, but it would get very lonely as well, which is why मेरे dad was a good company in playing games. So मैं बैडमिंटन बहुत खेलती थी उनके साथ। मेरे पापा के साथ बैडमिंटन, लाइक मैंने अपने पापा के साथ भी बहुत खेला। एक 0 क्रॉस खेलते थे वो, X and O, राइट। वो तो ऐसी गेम है जो कहीं पे भी खेल सकते हो। उससे मुझे एक और गेम याद आई, पेन फाइट। राइट। वो बहुत खेली है, वो बहुत खेली है। कैरम बहुत खेला है। आई थिंक आजकल हम वाली गेम्स खेलते ही नहीं है। इनफैक्ट पता है, इससे ना 4 जो लोग हैं हमारे साथ या व्हाटएवर हमारा कोई ग्रुप है, वो आज की जो गेम्स है, आज की जो कॉन्वर्सेशन से चीजें हैं, वो सारी थिंग्स उनकी वजह से लोग दूर हो गए। बट वो जो गेम्स थे ना, हमें आपस में मिला दिया करते थे, तो बातें होती थी। एग्जैक्टली, एंड आई आल्सो थिंक दैट्स फाइन। I'm sure the cup is not hurt. हैंगमैन खेली है? तुम शायद एलाबोरेट करोगी तो मैं समझ जाऊँ। हैंगमैन था बेसिकली, जैसे हम आई थिंक एक मूवी या कुछ का एक नाम फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, उसमें कुछ लेटर्स हम लिखते थे, एंड उसके बाद एक ऐसा एक हैंगमैन बनाते थे। लाइक अगर ऐसे फॉर एग्जांपल लाइक अ स्टिक फिगर। हाँ, काइंड। ओके, सो व्हेन द स्टिक फिगर गेट्स कंप्लीट, अब तुम्हारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू गेस द नेम ऑफ द मूवी, राइट, और गेस द नेम ऑफ द बुक और व्हाटएवर, मोस्टली मूवीज ही होती थी। हमारे
दम शराज ये तो ऑफिस एम्प्लॉइज का भी एक गेम होता है काफी, जो फ्राइडे एक्टिविटीज में हमारी एचआर ऑर्गेनाइज कराती हैं लाइक हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता है हमारी एचआर भी देख ले तो हो जाए अगले वीक होपफुली बहुत सारी मूवीज जिसमें वो मूवीज वगैरह इशारों से और पुरानी नई करके बताते हैं। पुरानी इट इज वेरी फनी, हिंदी इंग्लिश, इट इज रियली फनी। और जब जिस इंसान को एक्चुअली वो मूवी उसने देखी भी नहीं होती है, वो जिस तरह से इशारे करता है तो उसको देखकर उसका मजाक उड़ाने में जो मजा आता है। लेकिन जब आप उस जगह पे जाते हो और आपको एक्सप्लेन करना होता है तब आपको पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है। मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है, मैं उस जगह पे बैठ के बहुत ज्यादा बोलती हूँ यार ये नहीं बता पाया, अरे ये नहीं बता पाया, और जब मेरी बारी आती है तब आई हुई मेरी दम होता है। दमशराज में तभी तो बोलते हैं दमशराज। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक उठाए फ्रॉम योर्स। स्नैक्स एंड फूड। अरे इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए तो हम ऑलरेडी खा ही रहे हैं आई थिंक बट नहीं फूड भी लिखा हुआ है तो तुम्हारा व्हाट फूड टेक्स यू डाउन द मेमोरी लेन। आई वुड लाइक टू से समथिंग। आई थिंक फूड से मुझे बर्थडे पार्टीज याद आती हैं। तो बर्थडे से मुझे ये याद आता है कि उस टाइम पे किस तरह इलेबोरेट सेटिंग में, ऐसे नहीं था कि बुफे वगैरह लगता था, घर पे ही बुलाते थे सबको एंड होम कुक मील्स ही हुआ करते थे, या बाहर से थोड़ा बहुत समोसे वगैरह मंगा लिए और टैंग रख लिया, रसना रख लिया या फैंटा रख ली, तो स्टफ लाइक दैट। मुझे लगता है वही वाले बर्थडे अच्छे हुआ करते थे। मुझे भी अच्छे लगते हैं। अब तो हमें सब प्लान करना पड़ता है। मुझे अपनी नानी के हाथ का खाना बहुत याद आता है। वो माय नानी स्टिल अलाइव, फॉर दोज़ हू आर वंडरिंग कि मैं नानी के हाथ का खाना क्यों मिस करती हूँ। आई लिव इन अ डिफरेंट स्टेट देन शी डज। तो मुझे when I was a child, I used to live in the same place as she did. तो मेरे को नानी के घर का खाना बहुत मिलता था and वो obviously, और नानी के घर पे तो जो प्यार मिलता है हर बच्चे को, वो प्यार शायद कहीं मिल ही नहीं सकता। You know, प्यार एंड डांट दोनों ही नानी ही घर के, और डांट से बचने के लिए भी नानी का घर ही मिलता था। और कोई जगह है नहीं दुनिया में जहाँ पे हमें डांट से कोई बचा सके, सिर्फ एक्सेप्ट नानी वाला घर। और मैं तो सच बताऊं, मैं बचपन से नानी के पास ही रही हूँ, अभी भी रहती हूँ नानी वाले घर में। नानी वाले घर में रहती हो तुम? तभी तो इतनी दिखती हुई। और तुम्हारा कौन सा एक फेवरेट फूड या कोई फेवरेट स्नैक है बचपन का जो अभी मिलता नहीं है? बाहर तो देखो मुझे पहले बहुत ज्यादा खाने नहीं देते थे, लेकिन जब से पता चला है कि ऐसा कुछ बाहर, जब से नॉलेज आई कि नहीं बाहर जाके खाएंगे हम, जब सेल्फ डिपेंड हो गए कि आप जा सकते हैं बाहर, जब से मम्मी पापा ने अलाउड किया, तो तब से गोलगप्पे बहुत खाए हैं, जो कि कभी मुझे नहीं लगता खत्म होंगे इस दुनिया में। शायद सतयुग कलयुग और कोई सा भी युग आ जाए, बट गोलगप्पे विल नेवर एंड। ओके, हो सकता है वो सीता माता और सबने खा रखे होंगे इसलिए वो इतने फेमस है। तो नेक्स्ट टॉपिक, चलो मैं दूसरा टॉपिक निकालती हूँ। टीवी कमर्शियल्स, मूवीज एंड शोज, जो भी टीवी से रिलेटेड है तुम बता सकते हो। तुम शुरू करो। तुम्हें किससे शुरू करना है? तुम्हें मूवी से शुरू करना है, तुम्हें शो से शुरू करना है, टीवी कमर्शियल से शुरू करना है? देखो, या शोज देखो या इनफैक्ट टीवी ही देखो, मूवीज देखो, शोज देखो, कुछ भी देखो, जो एड्स होते हैं वो तो हमेशा बीच में इंटरप्ट करते ही हैं, जो कि आज हर एक ओटीटी चैनल पर भी आ ही जाते हैं। बट डिफरेंस ये है कि हम पहले सारे एड्स देखते थे क्योंकि हमें देखने पड़ते थे, क्योंकि उसकी एक बैक स्टोरी होती थी। अभी भी ऐसा नहीं कि अभी भी स्टोरी लाइन तो देखो एडवर्टाइजमेंट में चाहिए, बट पहले की स्टोरी लाइन कुछ ज्यादा ही डिटेल हुआ करती थी, जो एक्चुअली प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं होती थी, फिर भी हम उसको देखते थे। सो व्हाट अबाउट मूवीज? तुम मूवीज के बारे में बताओ, ऐसी कोई इस टाइम की मूवी। मुझे मूवीज तो बहुत सारी पसंद है। मैं बॉलीवुड की बहुत मूवीज देखा करती थी, अभी भी अब मैंने देखना कम कर दी है, बट आई थिंक मैंने कभी खुशी कभी गम कम से कम 1000 बार देखी बचपन से लेके अब तक। उसमें में भी ऐसे कुछ सीन्स है जिनको हम शायद कभी भूल ही नहीं सकते। कभी नहीं भूल सकते। कभी खुशी कभी गम है, कुछ कुछ होता है। मुझे नहीं पता था कभी खुशी गम वाली जो पूजा है वो इतना अच्छा वाला नेम भी दे सकती है। मतलब इट्स नॉट लाइक कॉल मी मासी, नहीं डोंट कॉल मी मासी, कॉल मी।
वो जो उसमें करीना कपूर का रोल है उसमें हाँ। उसका नाम पूजा होता है ना। हाँ। तो जब वो बिल्कुल हीरोइन वाले टच में आ जाती है तो जब उसका काया पलट हो जाती है काला पलट लाइक दिस। हाँ वही तो तो तब वो पूर्ण नाम रख लेती है अपना। राइट। हाँ, ऐसी तो- कोई कुछ बहुत सारी मूवीज है जो मुझे भी बहुत रिलेट करती है, खास करके मैं फनी मूवीज ज्यादा देखा करती थी। मैं ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती थी खुद को जो डिप्रेस कर दे, लेकिन अक्षय कुमार हुआ, गोविंदा हुआ, सलमान, शाहरुख, इनकी कुछ इतनी फनी मूवीज हुआ करती थी जिनको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। इनफैक्ट फिर हेरा फेरी, चुप चुप के शाहिद कपूर की, ये मुझसे कॉन्स्टेंटली बार बार दिखवा लो मैं देख सकती हूँ। वो अर्ली 2000 का भी चार्म अलग था, लेकिन आई थिंक अब आई डोंट नो कि अब अगर ऑडियंस अब उन मूवीज को देखेंगी तो रिएक्ट कैसे करेगी, आज की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। बट आई थिंक जो हमारे एज ग्रुप में आते हैं लोग, उनको तो कभी भी ये ऑल टाइम फेवरेट रहेंगी। एंड फिर तुमने अंदाज अपना अपना भी देखी हो, देखिए। और लाइक मुझे जो एक चीज लगती है, यू नो व्हाट, संजय लीला भंसाली की मूवीज होती है, वो सेट पर जो उसका प्रेजेंटेशन होता था मूवीज को प्रिपेयर करने का, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। मैं उस उन मूवीज को बार बार देख सकती हूँ। लाइक अभी भी जो उसकी कुछ मूवीज आ रखी है पहले, गंगूबाई, हाँ वही, वो थोड़ा लग्जरी टच देती थी। मतलब और मूवीज में मैंने वो वाली फीलिंग, वो वाली वाइब कभी पाई ही नहीं है जो संजय लीला भंसाली में, क्योंकि वो एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं। हाँ लिटरली। तो ऐसी कुछ मूवीज वो भी हैं, जैसे देवदास हुई और ऐश्वर्या की हम दिल दे चुके सनम हुई, उसमें जो उसके आउटफिट्स हैं ये सब कुछ मैं मतलब रिलेट करती थी, मैं बहुत ढूंढती भी थी। दे चुके सनम संजय लीला भंसाली की एग्जैक्टली डायरेक्शन है यार, राइट। उसका ऐश्वर्या का आउटफिट, शायद मुझे उसका डिजाइनर का नेम याद नहीं है, बट मुझे पहले था इतनी ज्यादा। तुम्हें एक कौन सी 90s की मूवी है जो तुम कभी भी देख सकते? नसीब अपना। नसीब अपना अपना, वो ऋषि कपूर वाली, राइट, जिसमें उसकी चोटी ऐसे होती है। हाँ। और उसके वो फैंसी से कपड़े काट कर एक सेक्सी सा ड्रेस बना लेती है। फनी मूवीज है, कॉमेडी मूवीज है, वो बहुत अच्छी लगती हैं। लाइक बादशाह इज वन ऑफ देम। ओके, इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट। वो मैंने देखी है भाई। भागम भाग है, हंगामा है, चुप चुप के भी काफी धमाल है, राइट। गोलमाल जो फर्स्ट वाली है, वो नॉट द ओरिजिनल गोलमाल जो जिसमें वो है शिट, मैं एक्टर का नाम भूल गई, इसमें बहुत सारे हैं, काफी सारे ही फेमस। अमोल पालेकर। ओके ओके ओके। और फिर हेरा फेरी में जो हमारा बाबू राव है हमारे, उनको तो कोई नहीं भूल सकता है। तुम्हें टीवी कमर्शियल अब कौन से पसंद है, मतलब which of the टीवी कमर्शियल की जाएगी make you nostalgic? Because मेरे लिए तो एक टीवी कमर्शियल जो मुझे अभी भी नॉस्टैल्जिया की फील देता है वो है MDH और असली मसाले सच काइंड ऑफ MDH, वो राइट। क्योंकि उनकी ट्यून, उनके एड्स, उनके वगैरह जो अभी आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स आते भी हैं वो काफी हद तक सेम ही हैं, उन्होंने चेंज नहीं किए हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट्स इवॉल्व किए हैं, तो द ओनली टच ऑफ nostalgia, hint of nostalgia that we get is from a few advertisements which are still the same. Right. In fact 90s की compilation भी थी, एक medley बनाई थी एक acapella group ने called Booktronica. Okay. If you'd like I'll share it with you. You can watch it. मैंने शोज कार्टून वाले डिज्नी चैनल पर भी देखे हैं, लाइक करण एंड कबीर, बेस्ट ऑफ लक मिकी, ये भी तुमने ये देखे हैं पहले? मैंने इनके जिस शो से इंस्पायर्ड है मैंने वो शोज देखे हैं। Okay. जैसे कि द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी, उससे इंस्पायर्ड द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर। बेस्ट ऑफ लक मिकी इज इंस्पायर्ड बाय गुड लक चार्ली। या राइट। एंड और कौन सा तुमने शो? हैना मोंटाना तो ओरिजिनल है, वो तो ओरिजिनल है। और एक और था तुमने आई थिंक नाम लिया था, करण कबीर लिया था, वो स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर। हाँ, तो दैट वाज इंस्पायर्ड बाय स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी। So let's move on to the next topic. Sure, तो तुम्हारी बारी है। Favorite memories from childhood. Favorite memories, पता नहीं वो फेवरेट है या नहीं। मुझे बस वो दर्द देती थी क्योंकि तब मेरी माँ मुझे पीट रही होती थी, लेकिन वो मेरी मम्मी के लिए बहुत अच्छी मेमोरीज हो सकती हैं क्योंकि वो मुझे पीट रही होती है तब, ठीक है। और मैं हम 4 भाई बहन हैं और हम चारों में से सबसे ज्यादा मैं ही पिटी हूँ।
इनफैक्ट मैं अपने घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे मेरा पर्सनल रिश्ता ना हो। चप्पल होती है, झाड़ू होती है, या फिर इनफैक्ट वाइपर होता है, या कुछ भी होता है, बेल्ट, या इतना भी ज्यादा जुल्म नहीं है। मैं अपनी माँ की अपनी ही बेटी हूँ, मैं सौतेली नहीं उनकी। मतलब तुम बेल्ट से पिटी हो क्या? पिटी हो? क्या बात कर रही हो? यू हैव टू चेक कि तुम उन्हीं की बेटी हो। उन्हीं की हूँ। नहीं, मैं बेल्ट से तो नहीं पिटी हूँ, बट मैं एक है ना, एक ऐसा, मुझे आई थिंक मारा नहीं गया है, as far as I remember, मुझे डराया गया है बेल्ट। ठीक है, वरना मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे मतलब इतने भी जालिम नहीं है। मेरे साथ तो होता था कि मुझे बाथरूम में बंद कर दिया जाता था लाइट बंद करके, लेकिन मुझे उस चीज से डर नहीं लगता था कि लाइट बंद कर दी और बहुत देर तक अंदर खाना नहीं है, पीना नहीं है, व्हाटएवर, मैं रह लूंगी। बट दैट वाज वो छिपकली जो दीवार पे 24 घंटे लटकी रहती थी, और उसे देखकर मुझे हनुमान चालीसा याद आ जाती है। मुझे तो स्टोर रूम में बंद कर देते थे, एंड बहुत ही एक अजीब सा एक कॉर्नर था। मुझे तो अंधेरे से भी वैसे भी डर लगता था, अब नहीं लगता उतना। तो मुझे अंधेरे से भी डर लगता था, एंड मुझे छिपकली का तो डर रहता है। तो मैं रो रो कर मेरे, आई रिमेम्बर मेरे घर के अंदर एक घर के अंदर नहीं, सॉरी, स्टोर रूम के अंदर एक और बेल थी। कमरे में ना हमारे इंडिविजुअल रूम्स में बेल रखी हुई थी टू कॉल द हाउस हेल्प। ओके, वो थोड़ा फैंसी सा हाउस था। तो वो सेम बेल एक और ऐसा कनेक्शन। तुम्हारे घर में तो स्टोर रूम भी था तुम्हें बंद करने के लिए, मेरे यहाँ पर तो एक वॉशरूम था ना, उसी में सब कुछ कर लिया जाता था, बंद भी और यूज भी, तो फिर स्टोर रूम की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हाँ, स्टोर रूम वाज स्पेशली फॉर स्टोरिंग नॉटी किड्स लाइक मी। तो वहाँ पे लॉक कर देते थे, एंड मैं कॉन्स्टेंटली बेल बजाया करती थी कि मम्मा खोल दो, मम्मा खोल दो, मम्मा खोल दो। तो वो जो बचपन का ट्रॉमा है वो अब तक आई एम स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। तो मुझे लगता है हमारा टॉपिक ये था बेस्ट मेमोरी। हमने सारी ऐसी मेमोरी बता दी जिसमें हमें दर्द मिले हैं। मेरे स्कूल में ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज उन्हें मैं दोबारा भी नहीं ला सकती, इसलिए मैं याद करती हूँ कि वो चीजें वापस आ जाए। तो एक बार कम बैक टू माई सीट या सिट अपराइट, बट एक बारी कैमरास लगे हुए थे हमारे स्कूल में। तो एक बारी प्रिंसिपल थे या स्पोर्ट्स टीचर थे, किसी ने तो देख लिया था जो मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने आके डांट लगाया, उन्होंने बोला इतनी भूख लगी तो मैं पहले बाहर जाके खाना खा दूंगा। मैं कहा ठीक है। मैं बाहर जाके खाना खाकर आ गई क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। मेरे पास तो बहुत सारे मेमोरीज है जो स्कूल से ही रिलेटेड है। हालांकि मुझे घर में इतने अच्छे अच्छे मेमोरी कोई मिले नहीं है, मुझे स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज मिले। जैसे पनिशमेंट किसी किसी के लिए बेकार होगी, बट मेरे लिए पनिशमेंट बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरी पनिशमेंट जब मुझे मिलती थी तो मेरे दोस्तों को भी मिल जाती थी, बिकॉज उन्हीं की वजह से मुझे पनिशमेंट मिली होती थी। तो हम सारे जाते थे फिर बाहर जाके बढ़िया चिल मारते। मुझे पनिशमेंट तो नहीं मिली, बट मेरी फेवरेट मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड इज जब मैं अपनी नानी के घर जाती थी। जब मैं दिल्ली में रहती थी, पर मेरी नानी का घर गोवा में है। ओके। तो वहाँ पे बीचेस हैं बहुत सारे। तो जब भी हम कजिन्स मिलते थे वहाँ पे, वी यूज्ड टू गो टू द बीचेस, एंड बीच पे बहुत मज़ा करते थे। देन वी यूज्ड टू गेट बैक टू आवर नानीज हाउस, एंड नानी के हाथ का बना हुआ खाना मिलता था फिर। और उनकी डांट भी पड़ती थी क्योंकि शी लव्ड क्लीनिनेस, शी इज अ क्लीनिनेस फ्रीक। उनको ये नहीं पसंद था कि हम रेत वाले पैर और हाथ पैर, मतलब गंदे हाथ पैर लेकर आए। तो वो मुझे नहीं पता, तो मुझे नानी या दादी कहोगी, लेकिन मुझे भी रेत वाले पैर बिल्कुल नहीं पसंद आएंगे। घर को जब गंदा होगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो अब मैं रियलाइज करती हूँ, पहले आई टू थिंक कि नानी थी, शी सच अ बदकिल काइंड ऑफ फूडली पर्सन। तो उनको वो सब पसंद नहीं था, बट मैं इरिटेट हो जाती थी। तो उनके दो घर थे आसपास के, आमने सामने, सॉरी। तो एक घर में जिनमें वो रहती थी, और एक घर जो उन्होंने फर्निश करके रखा हुआ था, बट वो मोस्टली लाइक अ गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो वहाँ पे हम जाते थे, वहाँ पे अपने पैर वैर धो के, क्योंकि उसका बाथरूम बाहर था, सबसे पास में था। तो वी यूज्ड टू क्लीन आवरसेल्व्स अप एंड देन गो टू द मेन हाउस। So yeah, I learned how to live by myself. I think I would like to thank Goa for that experience, क्योंकि it taught me how to be independent. Okay. But कहीं ना कहीं I miss those days जहाँ पे मैं अपने cousins के साथ time spend करती थी. So right.
So yeah, those are the things that I really miss. मैं उन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि गेम्स होते थे, बातें होती थी, और स्पेशली मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मुझे ये टीवी हुआ और कंप्यूटर हुआ, उनके साथ बहुत ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया है जितना मैंने फैमिली के कजन्स और इन सब के साथ। बट या ओवरऑल आई थिंक मज़ा तब उन्हीं के साथ आता है जिनके साथ हम अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं। राइट। तो कजन्स वगैरह जब होते हैं आसपास, इट्स ऑल द मोर फन। इवन ये बातें भी जो अभी हम कर रहे हैं, ये भी एक मेमोरी में चेंज हो जाएंगी, जो आगे आकर लाइक हम याद करेंगे कि नहीं, इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ हम फ्रेंड्स थे, हम बातें करते थे, उस टाइम पे हम वो वाला नॉस्टैल्जिया याद करते थे, और तब हम कॉर्पोरेट लाइफ भी याद करेंगे। Exactly. So we've munched up all the snacks for the day and we are out of snacks for this episode, but we are not surely out of topics. We'll see you in the next episode. तब तक के लिए keep snacking.